السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عرشیہ شیخ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سی ایم ریونت ریڈی، ریاستی وزیر پونم پربھاکر اور ٹی جی آئی آئی سی کے چیئرمین نرملا جکا ریڈی نے ہندوستان بمقابلہ ماریشس انٹرنیشنل فٹ بال میچ کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ ہائیڈرا اثر، رجسٹریشن میں بہت زیادہ کمی۔ گزشتہ ماہ کے مقابلے ہائیڈرا کے ساتھ لوگوں میں خوف و ہراس، آمدنی میں 320 کروڑ کی کمی ہوئی ہے۔ ہائیڈرا کی مسماری کا اثر رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ پر نظر آئے گا، جو جولائی کے مہینے کے مقابلے میں رجسٹریشن کافی کم ہوئی ہے۔ 5800 حیدرآباد، رنگا ریڈی، میڈچل ملکاجگری اور سنگا ریڈی میں اگست میں جی ایچ ایم سی کے تحت 41,200 رجسٹریشن کیے گئے تھے۔ جولائی میں رجسٹریشن کی آمدنی 1,105 کروڑ تھی، جبکہ اگست میں آمدنی 320 کروڑ کم ہو کر 785 کروڑ ہو گئی ہے۔ ہندوستانی بشمول 2 حیدرآباد کے ٹیکساس میں آتشزدگی سے متعدد گاڑیوں کے حادثے میں ہلاک جلی ہوئی لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے فنگر پرنٹس۔ ٹیکساس میں ایک المناک کثیر گاڑی کے حادثے نے جمعہ 75 کی سہ پہر کو حیدرآباد کی 2 شہروں سمیت 4 ہندوستانی شہریوں کی جان لے لی ہے۔ کولن کاؤنٹی شریف کے دفتر کے مطابق یہ تصادم جمعہ کی سہ پہر 3:30 بجے کے قریب وائٹ اسٹریٹ کے قریب ہوا ہے۔ متاثرین کی شناخت حیدرآباد کے آریان رگھوناتھ اور اس کے دوست فاروق شیخ، لوکیش پالاچارلا جو کہ تیلگو میں بھی ہے، اور تمل ناڈو کے درشنی اس کے طور پر ہوئی ہے۔ جب یہ حادثہ پیش آیا ہے تو چاروں متاثرین نے بینٹن ویل کے سفر کے لیے کار پولنگ ایپ کے ذریعے رابطہ کیا تھا۔ آریان رگھوناتھ اور جو بینٹن ویل میں مقیم تھے، ڈیلاس میں اپنے کزن سے ملنے کے بعد گھر واپس آ رہے تھے۔ لوکیش پالچارلا اپنی بیوی سے ملنے بینٹن ویل جا رہے تھے۔ درشنی واسودیون آرگلینڈ کی یونیورسٹی آف ٹیکساس سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرنے والی بینٹن ویل میں اپنے چچا سے ملنے جا رہی تھی۔ گروپ نے کار پولنگ ایپ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے سفری منصوبے بنائے تھے، جس نے بعد میں حکام کو متاثرین کی شناخت میں مدد کی۔ آریان کے والد سبھاش چندر ریڈی حیدرآباد کے کوکٹ پلی میں میکس ایگری جینیٹک پرائیویٹ لمیٹڈ کے مالک ہے۔ اس خاندان کا تعلق اصل میں رائے چوٹی سے ہے، لیکن وہ نظام پیٹ حیدرآباد میں آباد ہے۔ آریان نے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری امرتا وشوا ودیا پتن کونٹبور سے مکمل کی ہے، اور والدین میں 2024 میں یونیورسٹی آف ٹیکساس ڈلاس میں اس کی کنونشن کے لیے امریکہ میں تھے۔ کنونشن کے بعد آریان کو ہندوستان واپس آنے کو کہا گیا، لیکن اس نے اپنے والدین کو بتایا ہے کہ وہ مزید 2 سال امریکہ میں کام کرنا چاہتا ہے اور پھر واپس آنا چاہتا ہے۔ قسمت نے ایسا ہی حملہ کیا ہے، سبھاش کے خاندان کے ایک رکن نے کہا۔ فاروق بینٹن ویل میں بھی رہتے تھے، جہاں درشنی فریسکو ٹیکساس میں رہتی ہے۔ فاروق کا تعلق حیدرآباد بی ایچ ای ایل سے تھا، اور فاروق شیخ کے والد مستان ولی نے بتایا ہے کہ فاروق اپنی ایم ایس کی تعلیم کے لیے پچھلے 3 سالوں سے امریکہ میں ہے اور حال ہی میں مکمل کیا ہے۔ اس نے وساوی کالج سے اپنی انجینئرنگ مکمل کی تھی۔ مستان ولی کا ریٹائر پرائیویٹ ملازم ہے اور خاندان بی ایچ ای ایل حیدرآباد میں رہتا ہے۔ ہم گنٹور ضلع سے ہیں لیکن حیدرآباد میں آباد ہے۔ میری بیٹی بھی امریکہ میں رہتی ہے، وہ حالات کی دیکھ بھال کر رہی۔ تصادم جس میں تقریباً 5 گاڑیاں شامل تھے اس وقت شروع ہوئی جب مبینہ طور پر تیز رفتاری سے سفر کرنے والا ایک ٹرک سست ہونے میں ناکام ہو گیا تھا اور ایس وی یو کو پیچھے سے ٹکر مار دی، جس میں متاثرین سفر کر رہے تھے، اور حملہ اتنا شدید تھا کہ ایس یو وی میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے 4 افراد اندر پھنس گئے اور فرار ہونے میں ناکام رہے۔ آگ کی شدت کے بعد لاشیں شناخت سے باہر ہو گئی ہے، جس سے شناخت مشکل ہو گئی ہے۔ حکام متاثرین کی شناخت کی تصدیق کے لیے ڈی این اے، فنگر پرنٹ، دانتوں اور ہڈیوں کی بقایا جات کا استعمال کر رہے۔ مقامی حکام نے کہا ہے کہ لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے فنگر پرنٹس کی جائے گی اور نمونے والدین کے ساتھ ملائے جائیں گے۔ شناخت میں تاخیر امریکہ میں طویل تعطیل ویک اینڈ کی وجہ سے اور بڑھ چکی ہے، جس نے ملوث خاندانوں کے لیے اذیت کو مزید طویل کر دیا ہے۔ درشنی واسودیون کے والدین، جو حادثے سے کچھ دیر پہلے تک اس کے ساتھ مستقل رابطے میں تھے، اب ہندوستان کے مرکزی وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے مدد کی اپیل کی ہے۔ تلنگانہ جنا سمیتی کے کارکنوں سے اپیل۔ قانون ساز کونسل کے ارکان اور ٹی جے ایس کے صدر پروفیسر کودنڈا رام نے کہا ہے کہ موجودہ بارشوں کے تناظر میں آئے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے اور متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے حکومت اور عوام کے درمیان ایک کڑی کے طور پر کام کرے۔ اس صورتحال میں آئیے کل اپنی سالگرہ کی تقریبات سے دور رہے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے والے متاثرین کی مدد کرے۔
నమస్తే తెలంగాణ జనసమితి మిత్రులందరికీ పేరు పేరున వందనం. ఈ వర్షాలతోని మహబాద్ తర్వాత ఖమ్మం జిల్లాలు, వరంగల్ జిల్లాలు చాలా దెబ్బతిన్నాయి. ఈ జిల్లాలలో మరి రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు, ప్రాణ నష్టం కూడా జరిగింది. వీటన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ అందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి, తప్పనిసరిగా మనమంతా కూడా బాధితులకు సహాయం చేయటానికి పూనుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ వరదల కారణంగానే రేపు మనం ఎట్టి పుట్టినరోజు సంబరాలు హడావిడి చేయకూడదని కూడా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఇట్లాంటి కష్ట సమయంలో మనం కార్యక్రమాలు పెట్టుకోవటం సమంజసం కాదు. కాబట్టి ఆ కార్యక్రమాలన్నీ రద్దు చేసుకోవాల్సిందిగా అందరినీ కోరుతూ మనము ఈ వరద ప్రాంతాలను సందర్శించే పని పెట్టుకుందాం. బాధితులకు న్యాయం అందించడానికి ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్య అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరిద్దాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని సీరియస్గా తీసుకోవాల్సిందిగా, ముఖ్యంగా ఈ నష్టపోయినటువంటి ప్రాంతాల్లో మనం విరివిగా పర్యటించి బాధితులకు సహాయం అందే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. దీర్ఘకాలికంగా సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని వెతికే పనిలో కూడా మనం క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించాలని మిత్రులందరికీ పేరు పేరున నేను అభ్యర్థిస్తూ, మీ అందరికి కూడా తప్పనిసరిగా ఈ పర్యటన కార్యక్రమం నేను కూడా కొన్ని ప్రాంతాలు సందర్శించాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఆ కార్యక్రమం మీకు సాయంకాలం కల్లా తెలియజేస్తాను. నమస్తే. एपी तेलंगाना में सैलाब को वज़ीर-ए-आज़म मोदी को कौमी आफत करार देना चाहिए। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के रामकृष्णा ने मुतासरा इलाकों का दौरा करने और उनकी मदद करने और एपी में नहरों, तालाबों और आबपाशी के निजाम की हिफाजत के लिए हाइड्रा जैसे इक़दाम करने का मुतालबा किया है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के रामकृष्णा और असिस्टेंट सेक्रेटरी ने आज प्रकाशम ब्रिज के दरवाजों का मुआयना किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए रामकृष्णा ने कहा है कि खम्मम और नलगुंडा दो तेलुगु रियासतों में मुश्तरक है, खास तौर पर रियासत तेलंगाना और हमारे आंध्र प्रदेश में। उन्होंने कहा है कि रियासत के गुंटूर और कृष्णा अजला में शदीद मूसलाधार बारिश की वजह से प्रोजेक्ट्स की हालत गैर हो गई है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये नहीं है कि जो भी इंजीनियरिंग अफसरान थे उन्होंने बर वक्त जवाब नहीं दिया है। मूसलाधार बारिशें होने वाली है। अफसोसनाक अमर यह है कि महकमा मौसमियात की जानिब से वाज़े ऐलान के बावजूद कोई जल्द कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा इल्माती डैम से शुरू होने वाले तमाम मंसूबे तंगाभद्रा और प्रोजेक्ट में भी भरा हुआ पानी और श्रीसलम डैम, नागार्जुना सागर और इसके अलावा कई डैमें बंद हो गए हैं। सैलाब का असर मुकम्मल तौर पर कम होने के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने इस पर कहा। उन्होंने कहा है कि वो नजरसानी की दरख्वास्त कर रहे। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा का क़याम अमल में लाया और तालाबों की तमाम तजावुज़ात को दिलेरी से हटा दिया है। हमारी रियासत के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को ऐसी जुर्रतमंदाना फैसला लेना चाहिए। एपी में तमाम कस्बों में नहरों और नदी नालों पर तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साबिक वज़ीर आला और लीडर्स जगन के हुक्म के मुताबिक YSRC पार्टी की जानिब से सैलाब मुतासरीन में तकसीम के लिए गाड़ियां तैयार की गई। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने रियासत में मूसलाधार बारिश और सैलाब से होने वाले इमलाक और जानी नुकसान की तफसीलात इस हफ्ते के आखिर तक पेश करने की हिदायत दी है। बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए आज सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज और HODs के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। इस मीटिंग में DGP डॉक्टर जितेंद्र, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव मौजूद रहे। इस मौके पर CS ने कहा है कि अजला में सैलाब और बारिशें थमी नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुतल्लिका महकमों की टीमें फील्ड लेवल पर भेजी जाएगी ताकि नुकसान का फौरी जायजा लिया जा सके और कोऑर्डिनेट के साथ जमा कराया जा सके। इसी तरह रियासत के वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक हर जिला में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के क़याम के लिए दरकार फंड्स, अमला और आलात की तफसीलात फौरी तौर पर जमा कराई जाएगी। उन्होंने फौरी तौर पर मुनासिब इक़दाम करने का हुक्म दिया ताकि उन बारिशों और सैलाब से लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के जी दीप्ति को मुबारकबाद दी, जिसने पेरिस में मुनाकिद होने वाले पैरालंपिक्स 2024 में हमारे मुल्क के लिए एक और तमगा जीता है।
दीप्ति ने रेस T20 पैरालंपिक्स में खवातीन के 400 मीटर में कांसे का तमगा जीता था। एक पैगाम में वज़ीर आला ने कहा है कि दीप्ति हम सब के लिए एक अजीम तरगीब है जो आलमी खेलों के स्टेज पर फातेह बनकर ये साबित कर रही है कि टैलेंट माजूरी की राह में रुकावट नहीं बन सकता। वज़ीर आला ने पैरालंपिक्स 2024 में तमगे जीतने वाले तमाम हिंदुस्तानी खिलाड़ियों और खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। शाबाश सुभान अब हर तरफ उस शख्स का नाम सुनाई देता है। सुभान अब असली हीरो है जिसने खम्मम के प्रकाश नगर पुल पर सैलाब में फंसे 9 लोगों को बचा लिया है। एक आम आदमी जेसीबी ड्राइवर है और आपने अकेले वो काम किया जो काम एनडीआरएफ के एहलकार हेलीकॉप्टर वजीरों ने नहीं किया। आपने अकेले अपनी जान खतरे में डालकर तबाही में 9 लोगों को बचाया है। आप वाकई एक हकीकी हीरो है। मुआशरे को आप जैसे लोगों की जरूरत है। खम्मम के लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। अगर हम एक को खोते हैं तो हम 10 लोगों को अपने साथ लाएंगे। आपके अल्फाज सबके लिए एक तरगीब है। अंधेरे में निकल जाने वाले इस बड़े सैलाब के खतरे की जद में आ गए और उन 9 लोगों की जानें ज़ाय हो गई। उनके घर वालों को मुहाफिज बने, तमाम लोगों के लिए रोल मॉडल बने। तुम एक हकीकी हीरो साबित हुए हो। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बात आती है तो वक्त का वजीर आला हो या गुस्ताख रसूल की हिमायत करने वाला वजीर आजम हो, हम उसे उंगलियों की नोक पर रखते हैं। उन बातों का इजहार मोहम्मद अली शेख ने किया है। आज एमआयएमच्या जिल्हा कार्यालय येथे आम्ही आलेलो आहोत आणि एमआयएमचे जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट मोहम्मद अली शेख यांच्याशी काही विचारपूस काल जे नितेश राणे नामक आमदाराने एक चिथावणीखोर वक्तव्य मुस्लिम समाजाबद्दल केलेलं आहे की तुमच्या मस्जिदमध्ये घुसून आम्ही मारू, रामगिरी महाराजावर जर कोणी त्यांच्याबद्दल काही बोललं तर या बाबतीत आपलं काय मत आहे? नहीं, आज हमने वो क्लिप देखा और हम उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसकी थोड़ी सी मालूमात लिए तो हमको ये पता चला। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जिसके नाम बाप का पता होता है ना उसका कोई शिजरा होता है, ऐसे ही लोग इस तरीके से नफरत फैलाते हैं। हमें अभी इंक्वायरी करने पे पता चला कि बाल ठाकरे के पास एक सेवक था जिसका नाम थापा था और वो थापा की हाइट और इसकी हाइट सेम है और वो जो औलाद है वो थापा की औलाद है, ऐसा हमको पता चला। तो बहरहाल महाराष्ट्र की पुलिस से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे पिसाले कुत्तों को अगर वक्त रहते आपने अगर नहीं रोका तो हमको भी हमारा प्रोटेक्शन करने के पूरे अधिकार हैं। नितेश राणे को ये हमारा पैगाम है। उसने कहा है कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे। कौन से मस्जिद में और कहां पर आना चाहता है वो उसका बाप उसका भाई आए। और सबसे अहम बात यह है कि जिस पिंजरे में रह के वो ये बातें कर रहा है, थोड़ा सा उस पिंजरे से हटके ये पुलिस डिपार्टमेंट के सुरक्षा कवच से हटके ये बातें करे अगर वो सही मर्द की औलाद है तो हमारा महाराष्ट्र की पुलिस डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे पिसाले कुत्तों पे वक्त रहते हुए कार्रवाई करना चाहिए। रहा सवाल रामगिरी का, वो रामगिरी भड़वा और ये ऐसे कई आएंगे और जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करने की कोशिश करेगा, महाराष्ट्र की प्रशासन अगर उस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो हम उस पर क्या करना है इंशाअल्लाह जरूर करेंगे। तो ये नितेश राणे के ऊपर महाराष्ट्र की पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है। मागील काही काळापासून मुस्लिम धर्माबद्दल रामगिरी महाराज असो, नवनीत राणा असो, नितेश राणे असो किंवा इतर काही, आणि एवढंच नाही की मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा जाहीर समर्थन असं दिलेलं आहे, त्याबाबत तुम्हाला काय वाटतं? तुमच्या पक्षाची भूमिका काय असेल? एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए शख्स को इस तरीके की बात करना शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसकी हम निंदा करते हैं। एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठकर क्रिमिनल्स का प्रोटेक्शन करना ये बहुत निंदनीय है। इसका खामियाजा रियासत के मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ेगा। अगर कोई भी उसका समर्थन करता है रामगिरी का तो हमको उससे लेना देना नहीं है, चाहे वो वक्त का प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। हमारे जूती को जब बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की आएगी तो सामने वाला कितनी बड़ी पोस्ट वाला है हम वो नहीं देखेंगे, हम उसको अपनी जूती के नोक पे रखते हैं। तो चाहे वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो, चाहे फिर वो थापा की। शदीद बारिशों से मफलूज होने वाले अफराद के लिए फौरी तौर पर इमदादी और बहाली के अक़दामात किए जाए। फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागार्जुना सागर के पाए नालों को फौरी तामीर की जानी चाहिए।
तेलंगाना रियासत में खम्मम, नलगुंडा, वरंगल और हैदराबाद महबूब नगर के मुश्तरका अजला में 30 से 50 सेंटीमीटर बारिश हुई। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। नागार्जुना सागर के बाएं नहर से लेकर पालेरू तक नहर का बंद रामचंद्रपुरम के करीब एक जगह और पुल टूट गया है। उन दो जगहों पर यह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नहर के उन बंदों के टूटने से सारा पानी खेतों पर गिर गया और जगह जगह कंकरियां गिर गई है और हरे भरे खेतों पर रेत के टेले पड़ गए हैं। पालेरू से पानी के वापस बहाव ने मजीद नुकसान पहुंचाया। हजारों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया है। तेलंगाना स्टेट फार्मर्स यूनियन का मुतालबा है कि फसलों के तहफ्फुज़ के लिए टूटी हुई नहरों को फौरी तामीर किया जाए। किसी भी ताखीर से चावल की काश्त नहीं होने देंगे। चावल की लगाई गई फसल के मुकम्मल तौर पर तबाह होने का खदशा है। उन शदीद बारिशों की वजह से माहौल में होने वाले इंतहाई तब्दीलियों की वजह से हम मरकजी हुकाम से मुतालबा करते हैं कि वो इसे कौमी आफत करार दे। तेलंगाना में हालिया शदीद बारिशों और सैलाब के शदीद असरात से मुतासिर हुए गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तेलंगाना स्टेट ब्रांच को अपनी सूबेदारी ग्रांट से 30 लाख रुपए जारी किए हैं ताकि फौरी राहत हासिल की जा सके। अपनी जिले शाखों के जरिए सरगर्मियां और आफत से मुतासर अफराद की मदद करना। गवर्नर ने राजभवन में IRCS तेलंगाना को एक IAS स्टेट ब्रांच के चेयरमैन अजय मिश्रा और सैलाब से मुतासर होने वाले लोगों के लिए अपनी तशवीश का इजहार करते हुए गवर्नर ने अवाम से मुहतात रहने की अपील की है। उन्होंने IRCS के जिले शाखों, स्काउट्स एंड गाइड्स, NSS रजाकारों, मुखिर हजरात और NGO से भी मुतालबा किया है कि वो इमदादी और कार्रवाइयों बशमुल मुतासर अफराद में खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी अशिया की तकसीम अमल में लाए। अत्तापुर थाना हुदूद कयाम नगर में सैयद मुर्तजा अली उम्र 35 साल ने अपनी रिहाइश गाह पर फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी। वजीर पूनम प्रभाकर ने जुड़वा आबी जखायर का मुआयना किया। लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से बाला इलाकों से भारी सैलाब का पानी गंडीपेट के हिमायत सागर और उस्मान सागर तालाबों तक पहुंच जाता है। इस सिलसिले में हिमायत सागर उस्मान सागर के मुकम्मल गमलों की याद ताज़ा की है। आज वजीर पूनम प्रभाकर, MLA प्रकाश गौर, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और हैदराबाद कलेक्टर ने जल मंडली, रेवेन्यू, इरिगेशन के अहदेदारों के साथ सागर और उस्मान सागर तालाब का दौरा किया है। पूनम प्रभाकर ने वाटर बोर्ड के हुकाम से जुड़वा आबी जखायर में आने वाली आमद के बारे में पूछा है। पूनम प्रभाकर ने कलेक्टर को चौकस रहने और सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखने को कहा। पूनम प्रभाकर ने मशवरा दिया है कि हिमायत सागर और उस्मान सागर के नशीबी इलाकों में रहने वाले लोगों को होशियार रहना चाहिए क्योंकि किसी भी वक्त गेट उठाकर सैलाब का पानी छोड़ा जा सकता है।
AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और MLA नामपल्ली माजिद हुसैन की रहनुमाई में मल्लापल्ली के कॉर्पोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सदर के साथ HMWSSB के अहदेदारों के साथ नई सीवरेज पाइपलाइन 250 mm डेया बिछाने के मुकम्मल होने के बाद आज शिवाजी नगर मल्लापल्ली डिवीजन का मुआयना किया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।